दूर से एंगल ज़्यादा अच्छा आता है। So I'm welcoming Dr. मीनाक्षी आहूजा. किसी अगर आपके closest friend से पूछा जाए मैम, तो how do you think they'll describe you in 3 words? तो मैम आप just be naturally आप लिखिए. मेरी फ्रेंड्स ने एक बार मेरे को टीज किया कि Namaskar everyone. Welcome to the podcast Behind the White Coat. I'm going to welcome somebody very, very special. Today's conversation is going to be very special. जिनको मैं बुला रही हूँ, she has decades of experience. She is somebody who is on the field. So I'm welcoming Dr. Meenakshi Ahooja. She's a senior gynecologist. Welcome, ma'am. I'm glad you are here. My pleasure. Thank you, doctor, for calling me. अरे मैम, so today we are going to discuss something. जैसे मैंने आपको पहले बताया, I'll be discussing about patient problems, about अगर आप एक डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, गायनोकोलॉजिस्ट बनना चाह रहे हैं, किन सवालों के आप जवाब चाहते हैं, वो मेरे माध्यम से मैं डॉक्टर मीनाक्षी से पूछूंगी, मैम से पूछूंगी. एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे. एंड लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब. तो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपकी जर्नी के रिलेटेड होगा. तो हम if you see in Indian, if you see Indian statistics, in 5,000, I was going through that data. 5,000 की पॉपुलेशन के लिए एक गायनोकोलॉजिस्ट है, और हमारी जॉब भी बहुत डिमांडिंग है. So you did your medical degrees from government college, and I want you to tell about the whole journey. But why obstetrics and gynecology? क्या अच्छा लगा इस फील्ड का आपको जो आप इस फील्ड में आए? आई थिंक जो ये फील्ड ज्वाइन करने वाली बात है, आई वुड कॉल इट लक बाय चांस. क्योंकि आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स. माय फादर एंड मदर वर बोथ वेरी फेमस डॉक्टर्स इन दिल्ली. माय फादर वाज डायरेक्टर प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन. माय मदर वाज आल्सो अ डॉक्टर. माय मासी, अंकल, चाचा, ताऊ, everyone in the family is a doctor. So frankly speaking, medicine करनी was like a no-brainer. I had seen that. I used to enjoy being in a family of doctors. कई बार होता है कि वो negative effect होता है, but I love being in a family of doctors, and I saw the respect and regard my parents and the rest of my family got from everyone else. So doctor बनना was actually in my head By always. default. I didn't even know, there was anything else I could do. But not obstetrics and gynecology actually. So I was academically very strong, and so that's why frankly, gynae सबसे top पे नहीं जाती, तो people didn't even expect कि मैं obs and gynae लूंगी. And in all fairness, I must tell you that when I was in 3rd year, I wanted to be a neurosurgeon. Oh, okay. And then I realized कि for me, family is very important. Family, friends, having a life is very, very important. And I read somewhere that neurosurgeons are so busy in their work that they don't have time for their families at all. It's obviously not true, but for a 19, 20-year-old, that impact which comes in. So then I moved that, I wanted to do general surgery. I was always very enamored by doing surgery. Now, my father being a physician, you must remember this. I see a lot of female surgeons today, and with all due respect to all the female surgeons or girls who aspire to be surgeons, my father, I'm talking about 35 years back, right? More than 35, maybe 36, 38 years back. So my father felt that अगर सर्जरी करनी है तो गायनी करो. He said, see, you are one of the merit scholars of your batch, and you are a topper and all. और तुम जब सर्जरी करोगी और तुम देखोगी that it's a very male dominated field. True. So no men are going to come to you for surgery. Probably women will come for breast surgery or breast lumps or piles or something which they want to keep intimate, and they don't want to see a male surgeon for that. That's all you're going to get, and that will really bruise your ego, and you won't like it. So either you become a pediatric surgeon
which I couldn't do because I can't see sick children at all. Uh-huh. और he said you become a plastic surgeon. उस जमाने में plastic surgery के साथ burns का link होता था. True. Burns what was very depressing. So I just couldn't do Morosely. that. So then my father said, why don't you do obstetrics and gynecology? It's a happy field. It will suit your personality. You will get a balance of medicine and surgery, which is true. And, you know, I felt looking at other gynecologists, even though it's a demanding field. Again, I was seeing people in government job, you know, and not in private practice. So I felt that, yeah, you know, you can have a life of your own with your family, but get your hold on, you know, operating also. And probably somewhere at the back of my mind, the very thing that I could make a difference in the life of women True. was very, very important. So I followed that to the core, and believe you me, I've not regretted it for a single day. मैम एक्चुअली आई ऑल्सो कम, जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर ही बनते हैं. तो माय ग्रैंडफादर, माय दादाजी वाज आल्सो डॉक्टर, पापा भी डॉक्टर थे, तो मैंने भी वही फील्ड देखा. तो एमबीबीएस तो मैंने फ्लो में कर दी, लेकिन व्हेन आई वाज गोइंग फॉर एमएस आई वॉज शॉर्ट कि मुझे ऑब्स गायनी ही करनी है. Wonderful. क्योंकि बाकी सब में देयर वाज बैड न्यूज. देयर वाज, दिस इज द ओनली ब्रांच व्हिच कैन गिव यू अ वेरी गुड न्यूज एंड द फैमिली विल रिमेम्बर यू फॉर लाइफ. और मुझे वो इतना, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन अदरवाइज, तो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है टू बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, उनकी खुशियों में शामिल होना. मतलब इनफैक्ट अगर कोई पेशेंट मेरी ओपीडी में आता है और वो दुखी होके जाता है ना, मुझे बहुत गिल्टी फीलिंग होता है. I can imagine it's a very happy field. Yeah. We see miracles every day. Sure. 100%. And you bring so much joy into people's lives. And at the end of the day, it's probably, like you said, it's a blessing to be a gynecologist and an obstetrician. बिल्कुल बिल्कुल मैम. मैम जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी दैट विल बी फॉर एस्पायरिंग डॉक्टर्स. हर डॉक्टर जब फाइनली बैठता है और प्रैक्टिस करता है, तो देर आर ग्लूमी डेज, देर आर हॉरर डेज, एकदम खाली होती है ओपीडी. हाउ वाज योर जर्नी? आई मीन, अगर कोई somebody who is wanting to be a doctor first, then a gynecologist, आप क्या उनको suggestion देंगे, आप उनको क्या advice देंगे for them to succeed in this field? What should they be prepared for? So I'll tell you, success, if you want it long term, it has to be a very smooth curve. You think that suddenly you are going to be using a lot of channels as marketing and all. I don't even believe in that. I think you should have the passion to follow that subject. बिल्कुल. And you have to do it with dedication. And somehow I feel that when, children from school also ask me, should we do medicine? Because क्या होता है, जब आप 25-year-old हो, your friends who've done engineering, architecture, everyone is very well settled. True. और यहाँ हम students बने हुए हैं. Even at 28-year-old, you're not earning anything. And probably your success only comes after you're 40. So it's a very, very long, slow growth curve if you do it the right way. True. But if you want to do it 100%, then do it. Even if you want to do it 99%, don't do it. Don't do medicine or gynecology for money. You have to have that passion inside you. Money will follow. True. So if you do your work honestly, with integrity and the right way, again, this was my dad who told me. He said, don't think that you're going to get 100 patients on one day. You're one patient who works. Be accessible. Be available. But once a patient comes to you and that patient goes satisfied, they will send you 2 patients, the 2 will send you 4, the 4 will send you 16, 64 and so on and so forth. And let me tell you that today also, the biggest pleasure I get is when someone I had delivered 10 years back, 15 years back, 20 years back. I've been 30 years in practice. Yes, ma'am. So suddenly people will come with their 25-year-old and saying, doctor, you delivered this one. And now I have this problem in my family. Or, I got my niece to see you. Or, my son has now got married and he wants to come. True.
So I think that is the true victory and the true measure of success, that your patients come back to you and they have so much faith that they will tell you when they see you that I have sent so many patients to you. So that is the word of mouth. That is the way your practice should grow. And don't get disheartened. It's a journey which is, it's going to be there in medicine. So you have to be mentally prepared. Deal with it and go with the flow. Absolutely. मैम कोई ऐसी एनेक्डोट, कोई ऐसा इंसिडेंट जब आपको याद हो कि ये मेरा फर्स्ट डिलीवरी पेशेंट था, एंड आर यू स्टिल कनेक्टेड विद देम? Absolutely. So not in the government hospital, government वो तो hospital मैम तो होता वहाँ पे नहीं. तो But private practice can definitely, and that, that's another big thing, that probably when, in the government hospital, when you are senior residents, एक रात में आप 13-15 बिल्कुल, cesareans बिल्कुल, कर रहे हो. लेडी हार्डिंग में हमारा census था 150 plus deliveries in 24 hours. बिल्कुल, And as a senior resident, you understand that you are responsible Everywhere. for everything. हाँ. The first cesarean or delivery that I did in private practice was 10 months after I started practice. So it almost took a year before I did my first cesarean. Uh-huh. Now that girl is married. She's a school teacher. She अरे teaches वाह, English. अरे वाह. And very dear to my heart. She still comes and visits me. Now that she's married and now she's planning a family. So अरे yes, we will be moving forward with her soon. But I'm definitely connected with her. ग्रेट मैम. मैम स्टडीज और हमारी डेली प्रैक्टिस ये सजेस्ट करती है, बताती है कि दीज डेज पेशेंट्स तुम्हारे पास आएंगे जब एकदम एंड मोमेंट होगा, फाइब्रॉइड का साइज पहुंच चुका होगा अराउंड 24-28 वीक साइज, बहुत आई मीन इन अ ग्रेव बैड सिचुएशन व्हेन दे विल बी, वो आएंगे. ऑल्दो दिल्ली में इतना अच्छा कवरेज है डॉक्टर्स का, गायनोकोलॉजिस्ट्स का, बट स्टिल दिस इज द सिनेरियो. अगर मैं बात करूँ, जैसे हम जब मेडिकल स्कूल से निकलते हैं और फिर बोलते हैं ना कि अब कोई तो वनीला केस आए एंड यू ऑपरेटेड स्मूथली. आई डोंट थिंक अभी तक मेरी प्रैक्टिस में भी कोई वनीला केस आया. एवरीथिंग हैज बीन सो कॉम्प्लिकेटेड. आई रिमेम्बर मेरा जो फर्स्ट केस था ना, it was a cesarean section, chronic hypertension, she had diabetes, she was 38-year-old. That was my first case, ma'am. Got delivered at around 32 weeks. उसको मैग्नीशियम सल्फेट देना पड़ा न्यूरोप्रोटेक्शन के लिए. It was a tough case for me. But then that's what I want to tell you कि मतलब जो पेशेंट्स आजकल आते हैं, they are neglecting their health for so long. और एंड मौके पे आएंगे. सो व्हाट डू यू थिंक इज द सिचुएशन विद वुमेन? क्योंकि ऑफ कोर्स विद 30 years of practice you also have dealt with so many ladies. Where are we lacking in spite of a good medical system? Number one. Number two, आपको मतलब जब ये पेशेंट्स आते हैं, आपको क्या लगता है, वेयर आर क्या क्वेश्चंस मन में एक लेडी के होते हैं which are not addressed? So, first thing I would like to tell you that the situation is not so gloomy. It was even more gloomy 35 years back or 30 years back. In fact, तब तो जब आप पेशेंट से चाहे HPV वैक्सीन की बात जब 20 साल से कर रहे हो, या पैप स्मीयर क्या है, वो लोग समझते ही नहीं हैं और ना ही कराते थे. Thankfully today, I mean in so many years of practice, I've seen that now I have patients who come and they'll say, I've come for my routine pap smear. Doctor, I'm 40. Are there any tests I need to get done? अब मैं menopausal होने वाली हूँ कि is there something I should know about? बिल्कुल. So these are small victories, small wins. बिल्कुल. So I think awareness, telling patients that there is a solution and you don't need to live suffering. That's very very important. And I think धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है, अच्छा एक वो जो होता था ना कहानी कि सबको लगता है, डर लगता है डॉक्टर के पास जाने में, बिल्कुल, बिल्कुल. कि हम रूटीन चेकअप के लिए जाएंगे या हेल्थ चेकअप के लिए जाएंगे तो कोई बीमारी निकाल देंगे ये, फिर कोई ऑपरेशन कर देंगे या कुछ ऐसा है. So I think the most important thing is that we all should be talking about routine health checkups. Taking care of your health, and probably जो एक routine, especially having that awareness कि if you're in your teens and after that if there are irregular cycles, think about PCOS. If there are painful periods, don't accept it. Think about endometriosis.
If you're 30 and not planning children, you must think about preserving your fertility. You should understand that after 35 there are going to be other issues. After 40, thinking about what are your annual health check, what should you get done. तो ऐसा है कि लैब टेस्ट तो आजकल बड़े आराम से हो जाते हैं, मगर इसमें लेडीज भूल जाते हैं कि हमारे पास एक और ऑर्गन है, बिल्कुल, हमारा यूट्रस है, 2 ओवरीज हैं, ट्यूब्स हैं, तो गायनी चेकअप एक एक्स्ट्रा आपको कराना पड़ेगा. आप ये नहीं सोचते कि ब्लड चेकअप हो गया तो सब कुछ हो गया. देख लिया. सो स्पेशली आफ्टर 40 द रोल ऑफ रेगुलर पैप स्मीयर, मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड, ये जब हम पेशेंट से बात करेंगे, ये नॉलेज डिसेमिनेट हो गई, तभी औरतें समझेंगी कि आपको जब कोई तकलीफ है तब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना नहीं है, आपको रेगुलर चेकअप के लिए जाना है, ताकि कोई बीमारी अगर टाइम पे पकड़ी गई तो हो सकता है उसका मेडिकल ही इलाज जो आपको ऑपरेशन कराना ही ना पड़े. और अगर ऑपरेशन भी कराना है तो एक बेसिक कराना पड़ेगा और कुछ ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं कराना पड़ेगा. अब जैसे आपने कहा कि अगर कोई आ ही रहा है आपके पास, जब उसके फाइब्रॉइड्स इतने बड़े हो गए हैं तो फिर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स भी चाहिए होंगी, ओपन सर्जरी भी होगी, कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी. और अगर वो वक्त पे आ जाती, आजकल दवाइयां भी हैं जो फाइब्रॉइड्स के लिए हो जाती हैं, और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, और नहीं तो वो तो बड़े आराम से लैप्रोस्कोपिकली कर सकते हैं ना. बिल्कुल. तो टाइमली आना वो पेशेंट के भी हित में है, सिर्फ डॉक्टर के लिए ये नहीं है कि भाई अच्छी बात है, पेशेंट के लिए भी अच्छी बात है. बिल्कुल बिल्कुल मैम. तो मैम मैं अपने दूसरे पैशन की तरफ आती हूँ. उसके लिए आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ. देयर आर मेनी पीपल ऑन इंस्टाग्राम, क्वालिफाइड नहीं है, कुछ क्वालिफाइड भी हैं. लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन about delivery, about women health, that is available on social media. आपको क्या लगता है आजकल के ज़माने में आर वुमेन बेनिफिटेड, क्या औरतों को बेनिफिट मिल रहा है इस इंफॉर्मेशन से, या वो और कंफ्यूज होते जा रहे हैं कि आखिर मुझे करना क्या है? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? So firstly, there are good side and bad side of everything. बिल्कुल. तो सोशल मीडिया में जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, स्पेशली जैसे इंस्टाग्राम पे या इवन चैट जीपीटी पे, मुझे लगता है कि अगर कोई सिम्टम है किसी को चैट जीपीटी पे सर्च कर जाता है तो फ्रैंकली स्पीकिंग वो डर ही ज्यादा जाता है क्योंकि कोई भयंकर बीमारी जरूर निकल आएगी. तो फिर वो उस बहाने डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, अपना इलाज तो कर नहीं सकता, घबरा ही जाता है. तो पहली बात मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, प्लीज डोंट रिसर्च चैट जीपीटी. आप 2 घंटे की चैट जीपीटी पढ़ के आप गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते. और उससे वो चीज करो जिससे आपको तसल्ली मिलनी है. चैट जीपीटी या सोशल मीडिया आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देगा कि आपको तसल्ली मिल जाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोई भी सिम्टम की माइनर से लेके मेजर बीमारी हो सकती है. बिल्कुल. और उनका भी काम है कि आपको लिस्ट पूरी देना. बिल्कुल. तो आपकी नजर तो सबसे खराब डायग्नोसिस पे पड़ेगी और हो सकता है कुछ बेसिक ही हो, पर मैं तो कहती हूँ चलो वेरी गुड, आप देख के तो एटलीस्ट डॉक्टर के पास तो पहुंचे. मीनवाइल कमिंग टू द सेकंड थिंग, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, दैट इज वन प्रॉब्लम दैट आई फील, बिकॉज everyone who has had even one pregnancy thinks that they can inform everyone about what they have to do and all, and poor patients get completely confused. Human beings, especially women, are not Maruti cars कि एक फैक्ट्री में बनी है, एक ही इंजन है, एक ही उनकी माइलेज है और एक ही सिस्टम है. बिल्कुल. हर औरत यूनिक है और डिफरेंट है, and that's what keeps us going. After 30 years of practice, that is why I get joy in my work, because every woman is unique. Different. तो Instagram influencers सिर्फ अपने प्रेगनेंसी के बारे में लेके, मॉमी इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, go to endorse products and all whatever they felt they used, or it's a marketing gimmick also. बिल्कुल. But to feel that just because you went through one pregnancy that you can advise thousands of women on how their pregnancy should be is little unfair. Exaggerated, yeah. So, तो जैसे मेरे पास पेशेंट्स आएंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और पहला इंस्टाग्राम ने बोला कि भाई आप लेफ्ट साइड पे लेटा कीजिए. अब देखा जाए तो वो 20 वीक्स के बाद जरूरी है ना. आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव, आप लेफ्ट राइट सीधा क्या पेट के बल भी लेटोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So that is why you get a lot of wrong information. And your question may be specific, but you are looking at a generalized answer which may not necessarily be correct. To you. Yeah. So
आपको मैं एक सीक्रेट बताऊं, मेरे जब पेशेंट्स कहते हैं कि हाँ ये पढ़ा, तो मैं कहूंगी इंस्टाग्राम से ये पढ़ा अपनी प्रेगनेंसी में, तो वो कहेंगे हाँ, तो फिर मैं कहूंगी ऐसे करो, अपना एल्गोरिदम चेंज करो, probably eat, see, healthy protein recipes, Recipes. probably something which gives you joy, some travel की जगह के बारे में, या some shopping to do, बिल्कुल, या मेकअप probably रील्स some, मैम, हाँ, मेकअप रील। and probably जैसे कि मैंने बोला कि या तो आप ये चीज करो, या इंस्टाग्राम पे कुछ समथिंग विच इज फनी, जैसे कॉमेडी है, स्टैंड अप कॉमेडी, ये सब देखो ना, फील गुड फैक्टर हो। यू आर पेइंग टू सी अ गायनेकोलॉजिस्ट, बिल्कुल बिल्कुल सो गेट योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हियर। जो पूरे हफ्ते आपके पास या पूरे महीने आपके पास क्वेश्चन है, वो लिस्ट बना के आओ, वी आर देयर टू सॉल्व देम फॉर यू। बिल्कुल So I really think that if people are getting information from Instagram, you please remember that it should be a validated source. बिल्कुल If it's coming from a gynecologist or coming from a laparoscopic surgeon or an infertility specialist, definitely it has much, much, much more value बिल्कुल than, say, a person who's a layperson who is talking from their personal experiences. That's number one. Number two, वो भी जो डॉक्टर बता रहे हैं वो एक जनरल है, इट कैन नॉट टेक द रोल ऑफ अ कंसल्टेशन, यू आर यूनिक। एंड आई थिंक यूजुअली डॉक्टर्स जब डालते हैं अपनी रील्स, वो एक साथ में डिस्क्लेमर डाल देते हैं। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इट्स एवरीवनस पर्सनल जर्नी, एंड इसीलिए मेरे को लगता है वो जो टेम्पलेट्स भी बनी होते हैं हमारे लिए कंसल्टेशन एंड ऑल के, दे डोंट वर्क वेल बिकॉज एवरी वुमन इज यूनिक, एंड थैंक गॉड फॉर इट। एक्चुअली मैम, जब मैं आई बिकॉज आई मीन आई लव माई फील्ड, आई यूज टू गूगल और इंस्टा एवरीथिंग अबाउट इट, तो मुझे दिखता था कि कोई भी बैठ के कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। एंड आफ्टर डूइंग माई सीनियर रेजिडेंसी फ्रॉम सफदरजंग, एक पॉइंट आ गया, मैम कोविड आ गया था, तो आई वाज लाइक अब मैं कुछ नया सीख नहीं रही हूँ, एंड आई हैव दैट इनेट फीलिंग दैट आई शुड लर्न मोर समवेयर, सो आई वेंट टू पेरिफेरी। I wanted more exposure of surgeries, और वहाँ पे तो I mean there is nobody to see those patients, and you get a lot of experience from those patients. तो मैं हिमाचल चली गई for quite some time, और वहाँ मैंने रियलाइज किया कि कोई भी बैठ के कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, एंड दैट इज ट्रू ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो। तो ना आई मेड अ वेरी, एंड माई हस्बैंड बीइंग अ वेरी सोशली अवेयर पर्सन, तो उन्होंने मुझे बोला तुम व्हाई डोंट यू स्टार्ट सोशल मीडिया चैनल और वहाँ पे लोगों को इंफॉर्मेशन दो। और आई मीन आई स्टार्टेड इन इंग्लिश, मैं शुरू किया कि इंग्लिश में मैं ढंग से तरीके से बताऊँ। देन आई रियलाइज्ड कितने लोग हैं ना, मेरे वो हिमाचल में ही आगे पीछे कितने लोग थे जिनको जस्ट बिकॉज ऑफ वो लैंग्वेज बैरियर की वजह से पता नहीं चलती थी चीज़ें। सो आई ऑलवेज केप्ट इट इन हिंदी। और जैसे आप बोलते हो ना कि देर इज मैम, इफ यू स्क्रोल थ्रू, बिकॉज आई एम इनटू इट, इफ यू स्क्रोल थ्रू द रील्स एंड द इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग गिवन बाय कॉमन पीपल, एक प्रेगनेंसी के बाद इंफॉर्मेशन डाल दी, तो मैम जब मैं देखती थी कि इंस्टाग्राम रील्स पे इतनी बेकार इंफॉर्मेशन डल रही है, सो आई टुक अ कॉल कि मुझे हिंदी में बोलना चाहिए, और जितना हो सके लोगों को लॉजिक समझाते हुए लेट मी मेक देम अंडरस्टैंड कि क्या सही है क्या गलत। और जैसे मतलब आफ्टर एवरी मेडिकल एडवाइस मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाओ, उनसे पूछो। लेकिन अब रिसेंटली मैंने डाला था अनार जूस मत पियो, कि ये सोच के कि हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, आई मीन बिल्कुल तो बस दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, एंड दैट वाज द रीजन, सीइंग द ड्रॉबैक ऑफ सोशल मीडिया, व्हिच इज वेरी ट्रू। देखो ऐसा है कि ये तो हमें ध्यान रखना ही है कि जब ये कम्युनिकेशन है और इंफॉर्मेशन है, और आज की डेट में मोबाइल फोन हमारा सब्जी वाला, हमारा मोची, गांव में जो लोग हैं सबके पास है। आजकल कहते हैं कि फोन से ही पेटीएम, गूगल पे और यूपीआई ही चलता है, बिल्कुल, तो फोन सबके पास ही है। बिल्कुल, तो इंफॉर्मेशन का अगर एक्सेस होगा तभी बेटर हेल्थ केयर, और एक्सेस तभी जब है इंफॉर्मेशन का एक्सेस, तो आप सही इंफॉर्मेशन तो दें, बिल्कुल, इन अ वे दैट दे अंडरस्टैंड। यू कैन नॉट डिनाई टेक्नोलॉजी नाउ। बिल्कुल। मैम आती हूँ मैं दूसरे सेक्शन पे। मेडिसिन हमें प्रोटोकॉल्स देती है, गाइडलाइंस देती है,
एंड बीइंग एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, क्या आपके फील्ड में आप मतलब कि आपकी प्रैक्टिस में ऐसा कभी हुआ कि आपने गाइडलाइंस को उतनी तवज्जो ना दी हो एंड यू वर्कड अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन एंड थिंग्स रियली वर्कड आउट? कैन यू शेयर एनी इंसिडेंट? ऐसा कभी कुछ हुआ? I think guidelines are to guide. They are not Nice one, standard protocols. ट्रू ट्रू, तो आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस उसमें जरूर आएगा. बिल्कुल. आई एम श्योर जब you're younger, जैसे तुम्हारी एज पे है, तो थोड़ा सा डर लगता है कि भाई अपना, पर एक्सपीरियंस you understand that in the UK or the US, people who have time to make guidelines, they are seeing 7 to 8 patients in a day. बिल्कुल. आप सरकारी ओपीडी में 400 पेशेंट्स की ओपीडी बिल्कुल. होती है आपकी एंटीनेटल. तो आपके पास वो एक्सपीरियंस है, आपके अपने हेड में यू नो व्हाट वर्क्स, एंड you know that you don't have time to write guidelines or बिल्कुल, papers, बिल्कुल. but does not mean that your experience doesn't count. Secondly, जैसे कि मैंने बोला, हर वुमन मारुति कार की फैक्ट्री में तो बनी नहीं, तो आपको गाइडलाइंस ट्वीक तो करनी ही पड़ेगी. बिल्कुल. आई थिंक द बेसिक थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो गाइडलाइंस हैं, दे आर द बेसिक मिनिमल यू हैव टू डू. बिल्कुल. उसके आगे उसको आपको गाइड करना है, और आपने साथ में अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस, अपनी गट फील और अपनी विजडम नॉलेज यूज करनी ही करनी. बिल्कुल. जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. आपने बोला कोई एग्जांपल हो कि जैसे रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है. अब आप प्राइवेट प्रैक्टिस में बैठी, ठीक है, आपके पास एक पेशेंट आया, उसकी मिसकैरेज हो, ठीक है, हमें भी पता है कि 80% चांसेस हैं कि नेक्स्ट टाइम उसकी प्रेगनेंसी ठीक रहेगी, कर लेंगे, है ना. और जो टेस्ट सारे हैं बाकी, गाइडलाइंस ये कहती हैं, जैसे यूके गाइडलाइंस कहती हैं कि 3 मिसकैरेजेस होंगी तो तब आप कराएं. यूएस गाइडलाइंस कहती हैं कि 2 मिसकैरेजेस होंगी तब कराएं. इंडियन गाइडलाइंस भी 2 to 3 डिपेंडिंग ऑन द गाइडलाइंस कहती हैं. द प्लेस वेयर आई एम सिटिंग इन अ प्राइवेट सेटअप, एक लड़की को मैं देख रही हूँ जो 34 ईयर ओल्ड है, 36 ईयर ओल्ड है, या एक बच्चा है 24-26 ईयर ओल्ड का, उसको उसकी मिसकैरेज हो गई, वो कंप्लीटली ट्रॉमेटाइज्ड है, उसकी पूरी फैमिली, वो पेशेंट हमारे पास आ रहे, शी इज स्पेंडिंग मनी टू कम टू मी, शी इज पेइंग मनी. बिल्कुल. टेस्ट इन इंडिया आर इजीली एक्सेसिबल, हर लैब रीजनेबल टेस्ट कर देता है. बिल्कुल. तो एक बात बताओ, अगर मैं पेशेंट को एटलीस्ट वो टेस्ट ऑफर तो करूंगी एक मिसकैरेज के बाद. बिल्कुल बिल्कुल. आई कैन नॉट से कि क्योंकि आपका रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस नहीं हुआ, इसीलिए मैं वो टेस्ट अभी नहीं करूंगी, आपकी 2 मिसकैरेजेस हो जाएंगे या 3 मिसकैरेजेस हो जाएंगे, उसके बाद करूंगी. इट इज सो अनफेयर, क्योंकि अगर मैं 2 मिसकैरेजेस के बाद कराऊंगी तो पेशेंट भी तो मुझे कहे, डॉक्टर साहब फिर आप पहले ही करा लेते. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, जो नॉर्मल हेल्दी वुमन है उसमें कराने की जरूरत नहीं, बट द ट्रॉमा ऑफ लूजिंग अ early pregnancy बिल्कुल is a lot, and we should not judge whether our patient can pay for it or not. बिल्कुल. We must offer कि ये टेस्ट, और मैं हर पेशेंट को बोल दूंगी, गाइडलाइंस कहती है कि ये 2 या 3 मिसकैरेजेस के बाद करा लो, मगर मैं एक के बाद कराती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका कोई भी, आप जब मेरे को ये बात कह रहे हो कि डॉक्टर साहब आपकी उसमें जो भी है कि फिर से ये चीज रिपीट ना हो, तो वो कर लो, तो क्यों वो टेस्ट ना कराओ. तो ये तो एक बेसिक चीज है ना. एक्चुअली मैम आपसे बात करके ना आई रियलाइज वन थिंग, बिकॉज प्रोबेबली दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग अ पर्सनल कॉन्वर्सेशन विद यू. वी आर अ लिटिल इमोशनल पीपल. मैं भी जब पेशेंट आता है ना, हमेशा ये सोचती हूँ कि क्या ये चीज इसका पॉकेट बर्न करेगा. अगर नहीं करेगा, आई विल गो फुल ब्लोन कि भैया जो तुम आगे पछताओगे. और आजकल के क्या मतलब, हार्डली यू आर हैविंग वन चाइल्ड और 2 चिल्ड्रन, उसमें अगर वो एक खो जाए तो यू आर इन अ डीप रट. बिल्कुल बिल्कुल. एंड people these days are very very sensitive emotionally. तो क्यों तुम्हें सफर करना है ना, when you are affording, you can afford it, go full blown. अगर मुझे लगता है कि नहीं, they cannot afford it, then I of course I hang on to the guidelines, और मैं सोचती हूँ कि नहीं, minimal ही करवाओ. तो probably I am that's what I can judge. You are an emotional person. एक और चीज तुम एक्सपीरियंस के साथ देखोगे डॉक्टर आर्या, कि धीरे धीरे ना ये भी आप अपनी माइंड से ब्लर कर लो. आप ये अगर अपनी माइंड में सोचो, जब पेशेंट आपके पास आया है आपको बेस्ट समझ के,
वो आपकी जो फीस है उसको नहीं ग्रज कर रहा, आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि वो टेस्ट को ग्रज कर रहा है? आप लिख दो टेस्ट, उसको बता दो ये इतने के इतने के, वो लेट इट बी टू दैट पर्सन कि वो कराए या ना कराए। वो नहीं कराएगा तो हम कौन सा पकड़ के जबरदस्ती करा रहे हैं? ना ही मैंने अगली बार बोलना है आपने ये वाले महंगे टेस्ट क्यों नहीं कराए। It's okay. Ma'am, actually, Magar, you must offer the best. Sure. Ma'am, actually, there are days, Sundays को I do free OPD करती हूँ। बिल्कुल वो आपको जो मिनिमम, जैसे अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं कर सकते। बिल्कुल वहाँ पे I try keeping it on a lower side। बिल्कुल। तो या तो अगर पेशेंट खुद मुझे आके बोले कि मैम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, then I do that। तो मैम कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, तो मैम कहते हैं कि हर स्पेशली सक्सेसफुल गायनाकोलॉजिस्ट के पीछे एक फैमिली होती है जिसने बहुत डिनर खाए होते हैं उस फैमिली मेंबर के बिना जो गायनाकोलॉजिस्ट होती है। तो मुझे बताइए मैम कि ऐसा स्ट्रगल आपके साथ भी रहा होगा, और हाउ वाज इट, हाउ डिड यू डील विद इट, और जो गायनाकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए क्या नसीहत देंगे आप, और एनीथिंग यू वांट टू शेयर इन दिस रिस्पेक्ट? डॉक्टर आर्या, आई एग्री विद यू कि बहुत ओकेजन्स होते हैं, आप अपने बर्थडे पे तो होते ही नहीं हो वहां पर ये भी है कि आप अपने बच्चों के बर्थडे भी मिस करते हो। बिल्कुल। एंड डेफिनेटली टू बी अ सक्सेसफुल गायनेकोलॉजिस्ट, support of your parents and support of your family is, I won't say important, it is imperative. Because only then you will actually get joy in doing the work you're doing. Right. You will not feel the guilt Mom of guilt. people behind who are, you are not there for those occasions. True. तो वो तभी हो सकता है अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे। So that way I'm blessed that my husband, my children, and before that my parents and my in-laws, everyone was supportive in my journey. And I'm probably here where I am today because of everyone else's efforts, so hey, sacrifices they made, especially in the time जो उन्होंने मेरे को absent होने दिया। मगर ये जरूर है, every moment is worth it. And you also have to understand that आपको सिंगल फैसेटेड नहीं होना पड़ता। और इसमें जब आपने बोला कि बाकी गायनेकोलॉजिस्ट को आप क्या बोलते हैं, मैं ये वही कि उनकी फैमिलीज को पहले बोलूं कि सपोर्टिव बनो। और गायनेकोलॉजिस्ट आई हैव हैड समटाइम्स जूनियर्स हु हैव टोल्ड मी कि नहीं मैम बच्चे छोटे हैं, वी कांट मैनेज, आई हैव टू लीव वर्क, या मैं काम करना छोड़ देती हूँ, मैं घर पे बैठ जाती हूँ, या कुछ ऐसे। जो मुझे लगता है कि ये चीज somewhere I feel that you must try your best. At the end of the day, आपके पेरेंट्स ने जो आपको उस टाइम पे एजुकेशन दी है और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप डॉक्टर बन सको, गायनेकोलॉजिस्ट बन सको, ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती। Do justice with it. Do justice with it and respect the sacrifice your parents have made, your family has made, so that you can do your work. So that's another reason why you should do it well. बिल्कुल। But balance तो करना ही पड़ेगा. You can't get everything, but yes, the joy that you get from working, being independent and strong. I think at the end of the day, now at my age, you are small child, so you feel कि तुम उसको छोड़ के आ रहे हो. But let me tell you today, I feel happy that my children are proud of having their mother as a gynecologist. And surprisingly, both of them have followed the profession. So I must have done something right. So. मैम एक्चुअली ना मुझे इस बात पे अभी आई हैड गॉन टू विशाखापट्टनम टू माय हस्बैंड, और आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट कि मुझे करना क्या है, हाउ शुड आई प्रोसीड इन माय करियर। तो मैं मतलब आई वाज लाइंग डाउन और मैंने अपने पति को बोला कि एंड ही विद अ वेरी रोमांटिक टोन इन माय दिस थिंग, मैंने बोला कि एक होता है प्यार, एक होता है इश्क, और एक और होता है मोहब्बत। एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग अब मेरा नाम आएगा। तो बीइंग वेरी कैंडिड आई टोल्ड हिम एक होता है प्यार, एक होता है इश्क, एक होता है मोहब्बत, और मैं अपने प्रोफेशन से ना मोहब्बत करती हूँ। एंड ही वाज लाइक मेरा नाम भी कभी ले लिया करो। नहीं, मैं कहूँगी प्यार, इश्क और मोहब्बत तीनों अपने पति बच्चों से करो, मगर जुनून अपने काम करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर मैम।
तो मैम चलते हैं रैपिड फायर राउंड पे. Okay. ठीक है, तो I'll ask you questions. Try giving it in brief, but I know you're an emotional person and you'll tell your heart out. तो नंबर 1, मेडिसिन के बाहर अगर कोई आपका हिडन टैलेंट होता तो वो क्या होता, which people don't know about? I would have probably been a stylist. Yeah, and you would have broken. I'm not getting the word. आपने वहां पर भी रिकॉर्ड्स ब्रेक किए होते हैं. एक लाइफस्टाइल चेंज जो आप हर इंडियन वुमन को एडवाइस करोगे. Prioritize yourself. बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशली हाउसवाइफ हु आर हैंडलिंग होम. एक बात जो हर हस्बैंड को आप बोलना चाहोगे, seeing the emotional side of women we interact with as gynecologists. Don't take your wife for granted. वुमेन हेल्थ का सबसे स्टबर्न मिथ जो आपने 10 लोगों को बताया होगा अपने प्रैक्टिस में, लेकिन अभी भी नहीं समझते. कि जब पानी सिर के ऊपर हो तभी डॉक्टर को मिलो. That's the biggest myth. You must come and see your gynecologist For routine regularly. She should be your best friend. True. You should be able to discuss even the smallest problem with her. बिल्कुल. अगर मेडिसिन नहीं होती तो आप क्या होते? आई मीन, अच्छा ये सॉरी दिस ये नहीं. ओटी या क्लिनिक का सबसे चैलेंजिंग मोमेंट आपका कौन सा था? एनी इंसिडेंट यू वांट टू शेयर? I think I've loved every moment. Challenging वही I think शुरू में challenging होता है जब आप बैठे हो और patients नहीं और आप private practice में आते हो. बिल्कुल. और government hospital में because you are the senior most as a senior resident, you have so many juniors under you and you're working and everything. और clinic में आते हो तो जिस दिन आपकी काम वाली नहीं आती तो आपको झाड़ू भी खुद ही लगाना पड़ता है. Probably that was the most challenging. जरूर. किसी अगर आपके closest friend से पूछा जाए मैम, तो how do you think they'll describe you in 3 words? I hope I can just say I hope they describe me as a genuine and a kind and dedicated person. Very very warm. Thank you. अगर लास्टली मैं आपसे पूछूं, अगर किसी लेडी, कोई रूरल सेटअप में बैठी हुई लेडी जिसको आप एडवाइस कुछ करना चाहें कि जीवन में आगे कैसे बढ़ो, या वो लेडीज जिनके घर में बेटी है और उनको ताने सुनने को मिल रहे हैं कि बेटी हुई है, एनी एडवाइस और एनी moral boost you want to give them, please go ahead. Take pride in your daughters. And इसमें अगेन मैं एक छोटा सा एनेक्डोट जरूर बताऊंगी कि मेरी फ्रेंड्स ने एक बार मेरे को टीज किया कि माय सन्स नेम इज अरमान, कि अरमान तो मीनाक्षी की वीकनेस है. तो मैं बोला हाँ ये तो सच है. तो फिर उसके बाद मेरी डॉटर थोड़ी सी अपसेट हो गई, कहती कि मम्मा मेरे को ये बात अच्छी नहीं लगी. मैंने कहा वो मेरी वीकनेस है, आप मेरी स्ट्रेंथ हो. तो योर डॉटर्स शुड बी योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ. जरूर जरूर मैम. इट वॉज रियली रियली नाइस हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू मैम. ओटी और लेबर रूम के परे हम मिले, और हॉस्पिटल, ऑल्दो हॉस्पिटल में ही है, लेकिन फिर भी इट वॉज फन टॉकिंग टू यू. आई एम सो ग्लैड दैट यू केम. थैंक यू वेरी मच. Thank you for having me. Thank you.